Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma, and in our previous class we discussed exercise 5.2 up to question number 5. So from today we will continue from there. So our question number 6 is minus 150 is a term of AP 11852. सो हमको क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये जो AP दिया हुआ है माइनस 150 इसका टर्म है कि नहीं है. ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सो दिस इज सॉल्यूशन नंबर 6. अब हमको पूछ रहा है वेदर इट इज टर्म और नॉट. सो हम पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि टर्म है. सो लेट minus 150 is nth term of given AP. We assumed that this minus 150 is nth term of this AP. Therefore, we can write an is equal to minus 150. Our first term A is equal to 11 and common difference D is 8 minus 11, that is minus 3. Now we will use the formula. Nth term of AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. Substituting the values, an is minus 150, value of a is 11 plus n we don't know, value of d is minus 3. So this will become minus 150 minus 11 will be transported, and n minus 1 minus 3. So this will be minus 161 because 150 and 11 both are negative, so I will add them, is equal to n minus 1 minus 3. Minus 3 will come this side, minus 161 upon minus 3 is equal to n minus 1, or I can write n minus 1 is equal to 161 by 3. 1 is equal to, if you try to solve this, then 3 5s are 15, 11, 3 3s are 9, and then 22 is left, 0.666 and so on. If you solve, so value of n, 1 will go that side, that is 54.666 and so on. You can solve this in decimal also, like 1 will go that side. Another method is like this, n is equal to 161 by 3 plus 1, so this will become 164 by 3. Now 164 by 3, 6 plus 4 10 and 1 11. Sum of digit is 11 which is not divisible by 3. So यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, दोनों ही केस में n का वैल्यू होल नंबर नहीं आ रहा है, और हम क्या अज्यूम किए थे कि 150 इज nth टर्म. nth मतलब क्या हो सकता है, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, इस टाइप से होगा. 164 बाय 3rd टर्म तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज द nth टर्म में जो n है वो हमेशा बेसिकली नेचुरल नंबर होगा. नेचुरल नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 35th टर्म, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है इनका वैल्यू. सो बिकॉज वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, therefore minus 150 is not a term of given AP. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको. इसी की जगह n का वैल्यू 30, 40, 50 कोई भी होल नंबर आ जाता, देन 150 विल बी दैट टर्म ऑफ AP होता. ठीक. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6. Next is question number 7. The question says find 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Okay, so हमको find करना है 31st term, means A31 is what, and हमको given है 11th term which is 38 and 16th term which is 73. तो जो given है पहले हम लिखते हैं. 11th term A11 is equal to 38 and A16th means A16 is equal to 73. ये दो चीज़ें हमको given है. Next, A11, what will be A11? It will be A plus 10D is equal to 38. Suppose this is my equation number 1, and A16 that is equal to A plus 15D that is equal to 73, equation number 2. So now we are having two equations, two unknowns A and D. By applying linear equation method, elimination method, we can find the value of A and D. So equation 2 minus equation 1, that is A plus 15D is equal to 73. A plus 10D is equal to 38. So when you will subtract, A and A will be cancelled. 15 minus 10, that is 5D. 73 minus 38, 13 minus 8, 5 and 6 minus 3 is 35. So this 5 will go this side, so D will be 7. इतना डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ. आप 10th क्लास में हो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. दैट वैल्यू ऑफ D इज 7. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ D सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ D इन सपोज इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो. सो व्हाट यू विल गेट, A प्लस 10 इंटू 7 is equal to 38, means A is equal to 38 minus 70, that is minus 32. So I get the value of A as minus 32 and D as 7. Now I have to find A31. Now जो हमको फाइंड करना था, that is A31 will be A plus 30D. What is value of A? Minus 32 plus 30, value of D is 7, that is minus 32, 7 3s are 21, 2 10. So when you solve, you get 178. So 31st term of AP is 178. This is our question number 7. Okay. अब आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर
9। सेम क्वेश्चन 7 के जैसा ही है, अब पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द 17th term of AP exceeds the 10th term by 7, find the common difference। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछता नहीं एग्जाम में, या हो सकता है 1 मार्क में पूछ भी ले। सो द क्वेश्चन सेज 17th term exceeds the 10th term by 7। So solution number 10, so we know that 17th term of AP, that is A17, and 10th term of AP is equal to A10। ये हमको पता है कि हम ऐसे लिखते हैं 17th टर्म को A17, 10th टर्म को A10। नाउ according to question, what A17 is equal to A10 plus 7, that is our question, that 17th term is exceeds 10th term by 7। So what is A17? A17 is A plus 16D। What is A10? A10 is A plus 9D plus 7। Transport A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7। A minus A cancel, 16 minus 9, that is 7D is equal to 7। So value of D will be 1। बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सो अब यही हमको फाइंड करना था, और कुछ निकालने भी नहीं बोला है। वी हैव टू फाइंड जस्ट द कॉमन डिफरेंस एंड अवर कॉमन डिफरेंस इज 1। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बनाने में मज़ा भी आ रहा होगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 इज which term of AP, this AP will be 132 more than its 54th term। ओके, अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे जिसको पढ़ के हमको समझना पड़ेगा। द क्वेश्चन सेज विच टर्म, ठीक, तो ये हम पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि जब भी हमको बोल दिया विच, so we will say nth term। okay, so question number 11, so question says which term, so nth term, ठीक, of this AP will be 132 more than its 54th term। so given AP is 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 and so on। Let nth term of AP will be 132 more than 54th टर्म। ये हमने अज्यूम कर लिया विच टर्म की जगह पे nth टर्म। nth टर्म ऑफ दिस AP is 132 more than 54th टर्म। नाउ अब AP में जो जो पहले अवेलेबल है वो तो लिख लेते हैं। सो आवर फर्स्ट टर्म A, that is equal to 3, and common difference D, that is 15 minus 3, that is equal to 12।
ओके, सो जो हमने लिखा है nth टर्म दैट इज an will be means equal to 132 more than 54th टर्म. आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदलना आना चाहिए. ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्लास 7-8 से, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. सो nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म. सो व्हाट विल बी nth टर्म? a plus n minus 1 into d. 54th term will be a plus 53d plus 132. अब a का वैल्यू आपको पुट करना है तो कर सकते हो, बट देखोगे तो a इधर भी है इधर भी है, अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होगा. सो सिंपली वी आर लेफ्ट विथ n minus 1 into value of d is 12 is equal to 53 into 12 plus 132. So n minus 1 is equal to, ये 12 तो यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक. ऊपर हमारे पास बचेगा 53 इंटू 12 प्लस 132. अब दो तरीका है, स्टूडेंट इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला 53 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, एक बड़ा सा नंबर आएगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे. बट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होंगे वो स्मार्ट टेक्निक लगाएंगे, इतने लेंथी प्रोसेस में नहीं जाएंगे. अब वो क्या है स्मार्ट टेक्निक? तो ध्यान देना, 12 यहाँ है एंड यहाँ पे अगर इसको मैं 12 से डिवाइड करूँ, सो 12 दिस कैन बी रिटन एज 53 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 12, because 12 ones are 12, 2, then 12 ones are 12 plus carry 1 जो है 30, so that is 132. So this can be written as like this, value of n minus 1. देखो हमारा मल्टीप्लिकेशन का टास्क कितना बचेगा. अब 12 यहाँ भी है यहाँ भी है, 12 कॉमन, 53 प्लस 11 बाय 12, ये 12 तो सीधा कैंसिल हो गया. 53 प्लस 11 इज 64 एंड ये 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 65. सो व्हाट आपको आंसर लिखना पड़ेगा, दैट 65th टर्म ऑफ दिस AP इज 132 मोर देन 54th टर्म. ओके, सो दिस इज हाउ. ये वाला ट्रिक थोड़ा याद रखेंगे कि अगर हमको क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं तो इजी बनाना है, अननेसेसरी क्वेश्चन को हमको खींचना नहीं है. और ऐसा बहुत सारे केसेस आएंगे जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पे छोटे छोटे ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन इजी हो सकता है. अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 भी आप ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी इससे मिलता जुलता है, वो सेम ऐसा ही बनेगा, तो आप बना लेंगे. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. मतलब सिंपली हमको ऐसे ये पूछ रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल है. सो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर. ओके, अब अगर मैं इतना लिखता हूं तो आपको ये तो पता होगा कि स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होता है 100 एंड ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर होता है 999. ठीक, बट हमको 100 और 999 से मतलब नहीं है, हमको मतलब है डिविजिबल बाय 7 से. सो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर divisible by 7 and greatest 3-digit number divisible by 7. अब so smallest 3-digit number divisible by 7 हमको पता करना है. so smallest 3-digit number is 100, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7,
30, 7 4 जा 28, दैट इज 2, मीन्स 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास, दैट इज 98. हमको पता होगा 14 7 जा 98 होता है. सो 98 इज डिविजिबल बाय 7. 100 इज नॉट, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन हमको डिवाइड करना है 7 से. सो 7 माइनस 2 दैट इज 5. हमको 5 और इसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 105. 14 7 जा 10, 14 7 जा 98 है, प्लस 7. अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो 98 डिविजिबल है तो अगला नंबर प्लस 7 करके मिलेगा, दैट इज 105. सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105. सिमिलरली ग्रेटेस्ट, that is 999, divide this by 7. 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, that is 5 हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहा है. that 5 will be subtracted from here, so that will be 994. 994. सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 994. क्योंकि इसमें 7 कम करेंगे तो 98 आ जा रहा है, वो 2 डिजिट हो जा रहा है, और इसमें 7 प्लस करेंगे अगर तो वो 1001 हो जा रहा है, दैट इज 4 डिजिट नंबर. सो हमको ये तो पता चल गया कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन से हैं. तो जो हमारा सीरीज होगा, सो आवर AP विल बी, दैट इज 105. अब इसमें और 7, दैट इज 112, 119 एंड सो ऑन, और ये जाके फिनिश होगा 994 पे. सो ये है हमारा AP, और ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं. अब बस हमको ये पता करना है कि कितने नंबर, मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, जो हम पहले कर चुके हैं. दैट इज A इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू 7, लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 994. नाउ आई एम डूइंग इट डायरेक्टली. AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. 994 105 n minus 1 into 7. 994 minus 105 into 7. 14 minus 5 is 9. 8 minus 0 is 8, and 9 minus 1 is 8, is equal to n minus 1 into 7. So our n minus 1 is 889 by 7. So n minus 1, 7 1 जा 7 2 जा 7 4 जा, सॉरी 7 7 जा. फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत डायरेक्ट कर दिया मैंने. 7 1 जा 7 8, 18 बचा. 7 2 जा 14 and 7 7 जा 49. So value of n will be 128. So there are total 128 3-digit numbers which are divisible by 7. Okay, I think clear हो गया होगा आपको ये. Next, moving to last question for today, that is question number 14. How many multiple of 4 lie between 10 and 250? तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है, इसको मैं आपको हाफ सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है. सो given numbers are 10 and 250. Given numbers are 10 and 250 and multiple of 4 between 10 and 250 are. सो 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल. 4 1 जा 4, वो 10 से छोटा है. 4 2 जा 8, 10 से छोटा है. 4 3 जा 12, वो 10 से बड़ा है. देन 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन. और
250 से छोटा, दैट इज 248। इतना लॉजिक 10th क्लास का स्टूडेंट लगा सकता है कि लास्ट का 2 डिजिट 48 डिविजिबल बाय 4 है, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4 है। नाउ यू हैव a इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 4 एंड an इज इक्वल टू 248. So you solve this, get your answer. I'm sure that you'll get answer of this question. Same पिछले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा. Okay, so this is up to question number 14. 3 questions, basically 4 questions. A homework for you, that is question number 8, 9, 12 and this 14. Try to solve all these questions, and if you have any doubt then ask that. Okay, and one more, again I'm saying that share, subscribe and like the video. Thank you.